Hello all, welcome back to Made Legally. This is the third part of latest case laws, whereby we will be dealing with the recent case laws of the Supreme Court and High Court which has been passed in the past weeks. This series is not only important for your mains examination but is also very important for your prelim examination. The prelim examination pattern has drastically changed, whereby now the examiners not only ask questions from the landmark cases but they also ask from the recent case laws. This series particularly deals with the different interpretation which has been made. This also deals with the retreated things. Retreated मतलब दोहराया. अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात दोहराई हो अपनी, तो एक ये लेटेस्ट केस लॉ बन जाता है. और या तो कुछ अपोजिट हेल्ड किया हो जो कि उन्होंने प्रायर एक प्रेसिडेंट हेल्ड किया हो उससे, तो वो आगे जाने वाले एग्जाम्स के लिए लैंडमार्क केसेस बन जाते हैं. These case series is not only important for your preliminary or mains but also plays a very important role to enhance your knowledge, because you will get to know not only what the Supreme Court interpretation or the High Court interpretation is, but also what law is. Through this series we not only learn the case laws but also learn the laws. There are approximately 10 to 9 case laws in this series, so make sure you have the register and a pen with you so that you can write it on. Now, starting with the first case law, which is Sharmila Velamur versus Sanjay and others. So, in this case, particularly the Supreme Court has observed that when we talk about the mental and physical capacity of the person, and we are unable to get to know whether he is mentally sound or physically sound to make a decision, then the expert's opinion or the expert's report has the prior, or you can say priority over the mental and physical capacity. If we talk about the facts of this case, यहाँ पर ये हुआ था कि एक child है, उनकी custody की बात की जा रही थी. The child was stating that I want the custody of the mother, but the expert's opinion on this point, that whether the person is mentally capable of making this decision, was otherwise, whereby it was stated that the person is below the majority age, and thereby the Supreme Court had observed that whenever there is a doubt as to the person's capacity, then the reliance should be made to the expert's opinion. Very important for your expert's opinion वाला, आपको पता ही है मेंस एग्जामिनेशन में बहुत दफ़ा आपसे ये पूछा जाता है expert's opinion पे question. So you can write upon this. Whereas जब अगर हम बात करें child witnesses की, तो उसमें भी आप ये एक question को ये एक case law को डाल सकते हैं. Moving ahead with the second case law, whereby Supreme Court has reaffirmed, you can say reaffirmed मतलब एक बार फिर से दोहराया ये चीज कि अगर ब्रीच ऑफ अ मैरिज हो रहा है ऑन द प्रॉमिस दैट there is a promise as to marriage and there is a breach on it, that does not constitute rape itself unless it is proved that the accused never intended to marry. अगर ये चीज प्रूव हो जाती है कि फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग accused जो है उनका कभी इंटेंशन ही नहीं था मैरिज करने का, then it may amount to rape. But otherwise, any consensual act done within the relationship which does not amount to the marriage ahead, that does not make the consensual relation as a rape. And the Supreme Court has referred to Prashant versus State, NCT of Delhi. This was the landmark case. Now he has retreated, or you can say reaffirmed, this case law in your Ranjit Singh and versus State of UP and others. Next case is Patel Babu Bhai Mohan Das and others versus State of Gujarat. So over here, Supreme Court has defined and given the meaning to the statement, to the word of abatement to commit suicide. So Supreme Court has observed and given the definition of what does the abatement to commit suicide means. So over here, the court stated that it involves a mental process of instigating a person or intentionally aiding a person in the doing of a thing, ठीक है, without a positive proximate act on the part of the accused to instigate or aid in committing suicide, conviction cannot be sustained. यहाँ पर ये चीज कही गई कि अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड का मतलब होता है कि कोई मेंटल प्रोसेस हो इंस्टिगेट करने का या इंटेंशनली एड करने का उस पर्सन को कि वो सुसाइड करे. अगर ऐसा कोई पॉजिटिव एक्ट हो ही नहीं रहा है, कोई इंटेंशन ही नहीं है उस पर्सन की, तब वो अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं होगा. यहाँ पर क्या हुआ था, फैक्ट में बता देती हूँ. There is this lady who wrote the suicide note
कि मैं सुसाइड इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि देयर इज दिस पर्सन हु इज थ्रेटनिंग मी विद सम इलेजिटिमेट फोटोज ऑफ माई न्यूड फोटोज, आप जानते हैं, तो मुझे थ्रेटन कर रहा हूँ फोटोज को देख के, तो इसीलिए मैं इनकी इस थ्रेटनिंग की वजह से मैं सुसाइड कर रही हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या मियर थ्रेटन अगर कोई कर रहा है आपको, दैट डजंट मीन कि वो आपको एड कर रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है टू कमिट सुसाइड। तो ये चीज कही गई कि ऐसा कोई एक्ट, क्योंकि इंटेंशन नहीं है इस पर्सन का सुसाइड आपका कमिट करवाने का, इसीलिए दिस विल नॉट अमाउंट टू अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि सुसाइड नोट इज नॉट अ सोल बेसिस फॉर कन्विक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या सुसाइड नोट सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन बन सकता है? नहीं, until unless it is corroborated by other evidences. So very important for your prelim examination. अबेटमेंट टू सुसाइड पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो आपका ये केस लॉ इंपॉर्टेंट हो गया। सेकेंडली, अगर ये पूछा जाए सुसाइड नोट क्या सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन है, तो नहीं है, until unless it is corroborated with other evidences. Moving ahead with the next case law, which is Jamin and others versus State of UP and another. In this, the Supreme Court observed कि जो एप्लीकेशन सेक्शन 319 CRPC की, जो कि अब हो गया 358 BNSS, पहले हम समझ लेते हैं 319 सेक्शन क्या बात करता है। 319 सेक्शन बात करता है एडिशनल प्रोसिक्यूशन की। यहाँ पर कोर्ट के पास पावर होती है कि वो किसी भी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग में, बिफोर द जजमेंट इज गिवन, किसी भी पर्सन को अगर उनको लग रहा हो कि ये एक अक्यूज्ड हो सकता है इस केस में, दो ही वॉज नॉट नेम्ड इन द चार्जशीट एज द अक्यूज्ड, पर अगर कोर्ट को लगता है कि फैक्ट्स एंड एविडेंसेस को देखते ये पर्सन अक्यूज्ड है, तो वो उनको ऐड कर सकते हैं इन द अक्यूज्ड लिस्ट। तो ये कोर्ट के पास राइट दिया जाता है एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि ये जो एप्लीकेशन फाइल की जा रही है कि आप इस पर्सन को ऐड कर ले, तो ये तो कोर्ट भी कर सकता है, या तो पार्टी है वो भी कह सकती है कि आप इस पर्सन को ऐड करिए। ये जो अगर एप्लीकेशन फाइल की जा रही है और एक बार जजमेंट पास हो गया, ये रिवीजन पे केस चला गया, या मान लीजिए अपील पे केस चला गया और अपील पे भी कहा गया कि हाँ भाई एप्लीकेशन सही थी, कोर्ट ने ओवरलुक क्यों करी है एप्लीकेशन, कोर्ट को उस वक्त इस एप्लीकेशन के ऊपर इस पर्सन को ऐड करना चाहिए। तो अब हम जो ये इस चीज को रिलेट बैक कर लेंगे। रिलेट बैक का मतलब क्या होता है कि वापस से हम पीछे ले जाएंगे। यहाँ पर 319 सेक्शन जो सीआरपीसी का था, जो अब 358 बन गया है बीएनएसएस का, उसमें सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि कोई भी एप्लीकेशन या एडिशन करना है तो प्रायर टू जजमेंट करना चाहिए। बट दैट डज नॉट स्टॉप कि हम कहीं से भी उस पर्सन को आफ्टर जजमेंट तो नहीं ऐड कर सकते, बट अपीलेट में जा रही है, अपील में जा रही है, रिवीजन में जा रहा है, तो हाई कोर्ट और ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर जरूर है कि वो वापस से कहे कि आप इस एप्लीकेशन को कंसिडर करिए। तो हाँ, वापस से रिलेट बैक हो जाएगा, प्री ट्रायल रिजेक्शन ऑर्डर को हम वापस से हटा देंगे। अंडरस्टूड? मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट केस लॉ विच इज एक्स वर्सेस वाई। यहाँ पर ये एमपी हाई कोर्ट का केस लॉ है, जहां पर कहा गया कि अगर कोई हस्बैंड कंपेल कर रहा है अपनी वाइफ को कि अपनी डिसकंटिन्यू करो स्टडीज, दिस विल अमाउंट टू मेंटल क्रुएल्टी एंड अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स अंडर सेक्शन 13(1) IA ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। And it has also referred the case of Mohini Jain versus State of Karnataka and others, जो कि 1992 का केस लॉ है, जहां पर राइट टू एजुकेशन को आर्टिकल 21 से एसोसिएट करा गया है, एंड दैट इज वाई आपका ये वन ऑफ द मेंटल क्रुएल्टी का ग्राउंड बन जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ विच इज प्रदीप निरंकार नाथ शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्कोप ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की बात की है। आपको पता ही होगा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को लेके वन ऑफ द लैंडमार्क केस 2014 का ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड अदर्स का है, जहां पर ये कहा गया कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी चाहिए एक पुलिस ऑफिसर को बिफोर रजिस्टरिंग अ केस, बट एफआईआर रजिस्टर करने से पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी तब करनी चाहिए जब आप पुलिस ये ना पता लगा पाए कि जो ऑफेंस कमिट हुआ है क्या ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। पर जहां पर ये चीज स्टैब्लिश्ड है कि जो ऑफेंस कमिट हुआ है वो कॉग्निजेबल ही ऑफेंस है, तब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज नॉट रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर एक प्ली फाइल हुई बिफोर द कोर्ट और ये कहा गया, प्ली में उन पर्सन ने ये कहा, एप्लीकेंट ने ये कहा कि भाई इन्होंने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं की और सिंपली रजिस्टर कर लिया एफआईआर, तो ये चीज रिजेक्ट होनी चाहिए। एफआईआर मस्ट बी रिजेक्टेड ऑन दिस ग्राउंड, क्योंकि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं हुई और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज अ मैंडेटरी thing to be done by the police officer.
सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज को क्लैरिफाई किया कि भाई ललिता कुमारी के केस में ये चीजें कहेंगी। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज नॉट एन एब्सोल्यूट रूल. What was held is that preliminary inquiry is not an absolute rule. It is required only when there is uncertainty as to the cognizance of the offence. Otherwise, preliminary inquiry is not required. तो प्रदीप निरंकार नाथ शर्मा में यही चीज को क्लैरिफाई किया गया. Understood? Moving ahead with the next case law, which is विष्णु मित्तल versus शक्ति ट्रेडिंग कंपनी. इस चीज में सेक्शन 138 NI एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात की गई. यहाँ पर ये कहा गया सिंपली बिकॉज द चेक इज डिसऑनर्ड इट डज नॉट क्रिएट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 बट रादर द एसेंशियल्स ऑफ 138 टू बी फुलफिल्ड. और ये जो एसेंशियल्स इंग्रेडिएंट्स है ये आपके 2009 के जुगेश सहगल वर्सेस शमशेर सिंह गोगी में लेट डाउन किए गए थे. आप प्लीज वो केस लॉ देख लीजिएगा. अब यहाँ पर क्या कहा गया विष्णु मित्तल में कि भाई आपका अगर ऑफेंस क्रिएट होगा अगर 138 में, वो तब होगा जब जो 15 डेज का टाइम पीरियड आपको दिया गया था, नोटिस दिया गया था कि प्लीज अपना चेक डिसऑनर हो गया है, आप प्लीज पेमेंट कर दीजिए. अगर वो 15 डेज में आपका पेमेंट नहीं हुआ है तब उसके बाद दिस अमाउंट्स टू एन ऑफेंस अंडर 138 and not otherwise. Merely because there was a check which got dishonored does not amount to offense under 138 of NI Act. Moving ahead with the last case law, which is Ranjit Singh Bhatt and another versus Union Territory Chandigarh and another. ये 28 मार्च का ही केस लॉ है. इसमें ये चीज कही गई कि अगर मैजिस्ट्रेट के पास आपको कंप्लेंट करनी है एज पर सेक्शन 156 क्लॉज 3 ऑफ CRPC, तो ये आपको प्राइमा फेसाई नहीं करनी है कि भाई आज मुझे कोई केस हुआ तो मैं सीधे जाके मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट कर रही हूँ. रादर द प्रोसीजर टू बी फॉलोड. प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर करेंगे. हाँ, अगर पुलिस ऑफिसर FIR रजिस्टर करने से मना कर देता है या नहीं करता किसी कारणवश, तो आपके पास सेकेंड राइट स्टेप क्या है कि आप सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाएंगे. तो 154 क्लॉज 1 टॉक्स अबाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR बिफोर द पुलिस स्टेशन. इफ नॉट, तब आप रिटन कंप्लेंट कर सकते हैं टू वो इन दी बिफोर द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अंडर 154 सबसेक्शन 3 ऑफ CRPC. अगर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भी FIR रजिस्टर करने से मना कर दे रहा है तब आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं बिफोर द मैजिस्ट्रेट एज पर सेक्शन 156 क्लॉज 3 ऑफ CRPC. डायरेक्टली फाइलिंग द कंप्लेंट बिफोर द मैजिस्ट्रेट इज नॉट अलाउड. This was reiterated in Ranjit Singh Bhatt and another versus Union Territory of India. These were the case laws whereby some of the case laws were reiterated or reaffirmed what precedent was established. Some of the case laws has held something very different. So I hope आपको अभी की चीजें समझ में आ गई होंगी. Make a note of it because these case laws are very important for your all these stages. Not as a judicial aspirant but as a law student. These case laws are the basis of your knowledge. Thank you so much, and with this I'll end the session for today.